लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इंडिया पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की चर्चा करते हुए कहा कि भारत धीरे धीरे रूस से तेल पर अपनी निर्भरता कम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये विडंबना है कि यूरोप खुद वो तेल खरीद रहा है जिसे भारत रिफाइन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये रूस के वॉर को फंडिंग करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। Here we are now. He has been very clear that the U.S. is willing to do more, but the Europeans need to join us. President Trump unilaterally put 25% tariffs on India for buying Russian oil, and I think we are going to see the Indians slowly wean themselves off of that. But Maria, the most perverse part of that, India is buying discounted Russian oil. Guess where the refined products are going? They're going back to Europe. So the Europeans are financing the war against them. But President Trump yesterday has said that he believes that President Putin has embarrassed himself in this. अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने भारत से रशियन ऑयल की खरीदारी बंद करने की अपील की। राइट ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे। Solutions, like any one solution that can pinpoint, rely on the US for energy? Well, there's lots of oil exporters in the world. India doesn't need to buy Russian oil, right? India buys Russian oil because they can buy it for cheaper. Because nobody wants to buy Russian oil, so they have to sell it at a discount. India has decided to make the trade-off to buy cheaper oil and sort of look the other way. That's giving money to a guy who's murdering thousands of people every week. So yeah, of course, we wish India would work with us to buy this. You can buy oil from every nation on the earth, just not Russian oil. That's our position. America has oil to sell, but so does everybody else. We don't want to punish India. We want to end the war and we want to grow our relations with India. बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में एक चर्चा के दौरान भारत के साथ मौजूदा तनाव पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से आपत्ति है और वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी कर रहा है। Because you have to go through Bangladesh, you can invest in Bangladesh, Bangladeshis can invest in your territory, and anybody. That's what the whole idea of the SAARC. So if we can't do the whole SAARC, then we can have a mini SAARC of our own in a business deal, not political or any formal treaty or something. You need it. Nepal has to access ocean because all these goods and services coming back and forth need the access to the ocean. And in the process, all of us benefit from that. So I said, we think about the regional economy. So this is what we should be doing. We have problems with India right now because they didn't like what the students have done. They're hosting Hasina, who's the former prime minister, who created all this problem and killed the young people. And that creates a lot of tension. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बांसवाड़ा दौरे के समय कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में आदिवासियों की अनदेखी की गई। मोदी ने आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने आदिवासी मंत्रालय की स्थापना की और कई बड़ी परियोजनाएं भी शुरू की। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने
मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक दिल्ली तक आए पर सरकार ने उनकी और लद्दाख के लोगों की बात नहीं सुनी। देखिए, इस प्रकार से आग लगाने की घटना तो हम कतई उचित नहीं कर सकते। हिंसा का कोई स्थान प्रजातंत्र में नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है केंद्र में बैठी हुई सरकार जब वांगचू वहां दिल्ली तक गए, बात तक नहीं किया। लेह लद्दाख के लोगों की मांग क्या है? हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जो कश्मीर पूर्ण राज्य था उसको आपने केंद्र शासित बना दिया। तो देश में प्रदेशों की संख्या बढ़ रही थी, पहली बार हुआ कि देश में प्रदेशों की संख्या घट गई। अब वो मांग कर रहे हैं, उसे बुला के बात करना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? अब बात ही नहीं करेंगे तो आक्रोश बढ़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने तंज कसा। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे को सिर्फ भ्रमण बताया और कहा कि जब उनके जमाने में बिहार था तब गाड़ियां कम थीं और पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी। टहलने आए, घूमे फिरे, बिहार बहुत तरक्की कर गया। मुझको पूरा विश्वास है जब उनके जमाने का बिहार था तो उस जमाने में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहुत ही कम थी तो पूरे बिहार पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। आज जब वो आएंगी और इतना अच्छा फ्लाईओवर्स युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बापू सभागार जरूर जाना चाहिए, जहां नीतीश कुमार जी ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। वहां जाकर के वह नीतीश जी की तरक्की देखें, पटना म्यूजियम भी घूमें। बिहार बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वो आए हैं तो एक दिन के लिए जरूर पटना घूम करके ही उनको जाना चाहिए। मैनिफेस्टो बिहार के नागरिकों का होता है, संपूर्ण समाज का मैनिफेस्टो एक साथ ही जारी होता है। लेकिन जिनकी दिलचस्पी बांटने में हो, जिनकी दिलचस्पी विभाजन में हो और जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो, केवल वही मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें कि केवल फर्जी बातें लिखी हो। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 फिल्म को लेकर उठे विवादों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पहले ही पूरी हो गई थी। दिलजीत ने कहा कि वो हमेशा आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रार्थना करते रहे हैं। आओ मेरे देश का झंडा, always respect है साडे नाल। एक छोटी जी गल करने वाली है, कर लो 2 मिनट। जदों मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी जदों ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे, और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, असी उदों भी निंदा की, उदों भी अरदास की, अज भी अरदास कर रहे हैं कि जिन्होंने भी वो हमला किया उन्होंने सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। असी अपने देश के नाम पर आज जो मैच हुए इन्हों तो मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। साड़ी फिल्म पहला शूट हुई सी, मैच बाद शुरू। नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ को देश के खिलाफ दिखाने के, पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे को बहुत जवाब है, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारिया गल्लां, मैं बोलिया नहीं। मेरे को जवाब बहुत है, यही है कि कोई कुछ भी कहे थानू तुसी उस जहर को अपने अंदर नहीं लेके जाना। ये मैं सीखिया, ये लाइफ से मैं सीखिया, इस करके मैं बोलिया नहीं, मैं चुप रहा। पर थोड़ा प्यार है,
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ तो ਰਿਹਾ नहीं गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक नई योजना MAA की घोषणा की। ये घोषणा महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान की गई। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे पूरे राज्य में इस योजना को लागू करेंगे। इसके तहत महिलाओं को मकान, आमदनी और अन्न, इन 3 जरूरतों को पूरा किया जाएगा। की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसलिए बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत से महिलाएं जो हैं आज जुटी हैं इतनी बड़ी संख्या में। नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। माँ का है, उसमें मकान है, अन्न है और आमदनी है। ये माँ का फुल। शिवसेना यूबीटी के नेता और वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे ने इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव में चुनावी गड़बड़ियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव से पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाताओं की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी, गायब मतदाताओं और पोलिंग बूथों के प्रबंधन में गड़बड़ियों के बारे में शिकायत की गई थी। Speaking to the Election Commission, we have already written to the Election Commission before the elections last year about the sudden spike in voters, about missing voters, about why the booths have been mismanaged. Before the election? Before the elections. And that we will have a press conference with all the data that we are working on right now, putting together. Are you also doing something similar to Rahul Gandhi? Absolutely. Oh. And there are shocking... You're doing this? Yes, we are doing it. We are doing it as the India What Alliance. version of the... now, he's on the hydrogen bomb version right now. What version are you working on? Let me not leak it. You know, let me not leak it. When can we expect it? Closer. इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के क्रिकेट मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद भारत की जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पीसीबी ने इस बयान को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। Thank you so much, and I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. Well done, Surya. So there was Surya Kumar Yadav. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के ऊर्जावान और होनहार खिलाड़ियों को पुलिस में भर्ती करने की घोषणा की है। ये कदम राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसमें खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। सैनी हरियाणा पुलिस एकेडमी में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर के समापन समारोह में बोल रहे थे। आज जब मैं यहाँ ऑल इंडिया पुलिस जो रेसलिंग ये क्लस्टर का महोत्सव हो रहा है, मैं इस अवसर के ऊपर मैं ये घोषणा करता हूं कि प्रदेश के हमारे ऊर्जावान व होनहार जो खिलाड़ी हमारी शान है, हमारे ये आइकन है, मैं ऐसी उद्यमीमान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही हरियाणा पुलिस में इनकी भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे पुलिस के ये जवान ये देश और प्रदेश में हरियाणा के नाम को और ऊंचा कर सके। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं और आप सब खिलाड़ियों का पुनः जो पूरे देश से यहाँ आप लोग पधारे हैं और आज यहाँ से आप वापिस अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे, मैं आप सब जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ हिस्सा लिया है उन सब का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।